Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about the potential at a point due to a point charge and also due to a system of charges. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards. This will also be found useful for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. First, the potential at a point due to a point charge. Assume कीजिए we have a point O here where we have a positive charge plus Q. And we have to find the potential due to this charge plus Q at the point P where the distance OP is equal to R. इस लाइन को ज्वाइन कीजिए और इसको एक्सटेंड कीजिए. Let this line goes up to infinity. इस लाइन पर एक पॉइंट A है जो उसका डिस्टेंस O से X है. Okay, so how do we define the potential? The potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. मान लीजिए किसी समय हमारा चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो ए पॉइंट पर है और इसको हम ए से ए डैश तक ले आते हैं वेयर ए डैश डिस्टेंस इज dx. तो देखिए ये प्लस क्यू चार्ज जो है पॉजिटिव है और ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है. तो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है ना. ये रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग? द फोर्स एक्टिंग on the unit positive charge at the point A is 1 upon 4 pi epsilon naught q into 1 upon x square. So this is q upon 4 pi epsilon naught x square. ठीक है. अब देखिए कैसे निकालेंगे वर्क डन. वर्क डन जो है उसका फॉर्मूला क्या है? This is given by the dot product of force and displacement. So this is F dot S and this is equal to Fs cos theta, where theta is the angle between the direction of force and that of displacement. यहाँ पर देखिए फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट की ओर. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स राइट एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट. हम चाहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से ए डैश की ओर ले जाएं. सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and displacement are opposite to each other. So the angle between the force and displacement in this case is 180, and because cos 180 is minus 1, so here work done comes out to be minus F into S. ठीक है. इसलिए हमने यहाँ पर ये साइन नेगेटिव किया है. दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला हमारा है वर्क डन का, ये उस समय के लिए वैलिड है जब पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स का मान कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस प्लस क्यू चार्ज से घटता है, जैसे जैसे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ले आते हैं डिस्टेंस घटता है एंड देयरफॉर फोर्स गोज ऑन. कैसे इंक्रीज करता है फोर्स? दैट वी नो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर. सो जैसे डिस्टेंस घटेगा फोर्स काउंट बढ़ेगा. सो वी कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली in calculating the work done in displacing the unit positive charge from the point A from infinity to the point P. So what we do? We divide the total distance from infinity to the point P in small elements of length dx, where dx tends to 0. ठीक है, dx tends to 0. तो ये दूरी बहुत छोटी है, तो हम मान सकते हैं इस इंटरवल में फोर्स का मान कांस्टेंट है. उसी तरह इस इंटरवल में फोर्स का मान कांस्टेंट है. So we can find out the work done for a small displacement dx. तो ये हम यहाँ निकाला हमने ये है. The small work done for displacement of the unit positive charge from the point A to A dash is equal to minus F into A dash.
दिस इज माइनस एफ डी एक्स। एफ का मान कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन इज हियर, एंड दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, where the negative sign indicates that the force F and displacement A dash are positively directed. So total वर्क डन कैसे निकलेगा, इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन W है, DW है, फिर इसके लिए निकालेंगे वर्क डन, फिर इसके लिए निकालेंगे वर्क डन, और सारे वर्क डन को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा हमारा टोटल वर्क डन इन bringing a unit positive charge from infinity to the point P. तो उसको हम करते हैं by use of calculus. So total वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dW, वैल्यू ऑफ dW इज दिस वन। पुट कीजिए इक्वेशन 2 से यहाँ। अब देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, सो बाहर निकाल लीजिए, ये बाहर चला आया यहाँ पर, ये हो गया माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल वेरी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो ये जो इंटीग्रल है ये हुआ कितने के बराबर, -1 अपॉन एक्स, लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब देखिए इसका सॉल्यूट करना है, इसको माइनस को बाहर निकाल लीजिए, दिस इज 1 अपॉन एक्स, limits of the integral from infinity to r. Put the upper limit first in place of x. This is 1 upon r minus 1 upon. Put the lower limit here. This is minus 1 upon infinity. 1 by infinity is 0. So this is simply equal to minus 1 upon r. ठीक है, तो ये वैल्यू हुआ माइनस 1 अपॉन आर, तो ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस क्या हो गया कट के, प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। So this is Q upon 4 pi epsilon naught into 1 upon R. ये तो जीरो हो गया आपका ये, दिस इज W इक्वल टू Q अपॉन 4 pi epsilon naught into R। तो चूंकि पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी अप टू द पॉइंट, सो दिस वर्क डन इज नथिंग बट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। So potential at the point P is simply equal to W, this is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into R। अब देखिए Q अगर पॉजिटिव होगा, कैपिटल Q पॉजिटिव है तो P पर पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और Q यदि नेगेटिव है तो P पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ओके, अब आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल जो है सो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वर्क डन के बराबर है ये, तो चूंकि वर्क डन जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए यदि किसी पॉइंट पर कई चार्जेस के कारण निकालना हो पोटेंशियल, तो कैसे निकालते हैं, हर एक चार्ज के कारण उस पॉइंट पर निकालेंगे पोटेंशियल, और चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है सारे पोटेंशियल को हम जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, इसके चारों तरफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ये चार्जेस हैं, और P की दूरी इन चार्जेस से कितनी है, Q1 की दूरी है R1, Q2 की दूरी है R2, Q3 की दूरी है R3, Q4 की दूरी है R4, और Qn की दूरी है, इनके कारण पोटेंशियल कितना है V1। Q1 के कारण P पर पोटेंशियल है V1, कितना होगा V1 का मान, V1 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 हुआ पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, ये कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू चार्ज QI is 1 upon 4 pi epsilon naught into QI upon RI। तो ये जो पोटेंशियल होगा P पर सब चार्जेस के कारण ये इनके सम के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम, नॉट वेक्टर। तो देखिए इन सारे पोटेंशियल्स में ये टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, क्या वेरी कर रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो जो कॉमन टर्म है उसको हमने बाहर निकाल दिया है, बाकी सारे जो रिमाइंडर्स हैं
को हमने एक साथ जोड़ दिया है। सो दिस इज रिटन एज समेशन ओवर क्यू आई अपॉन आर आई, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, so this is how we find the potential at a point due to a system of point charges। I assume you like this presentation। यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम with some other topic of interest। Till then, goodbye।